यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम मैट्रिसेस पहले ही कर चुके हैं। आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स में आज हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स एंड हाउ वी फाइंड इट। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं बेटा, ये समझने के लिए लेट अस हैव एन एग्जांपल। यू कैन इजीली से दिस इज द मैट्रिक्स called A and its order is 2 by 2, right? Can we say it is a square matrix? Yes, it is a square matrix, right? To every square matrix, there is always a number connected with it, and with this matrix, there is a number -5 connected with it, which is called determinant of this matrix, and it is written as determinant A, det of A, matrix name, equal to determinant A. This symbol here in matrices are also called determinant. Okay, that means determinant of this matrix is -5. But how we find it? How we find it? 3 into 1 product of these elements, you know it is a diagonal, main diagonal in fact. 3 into 1 minus 4 into 2, diagonal elements का product minus of diagonal elements का product. This is so easy in 2 by 2 matrix. Okay, 3 into 1 minus 4 into 2, that means 3 minus 8, that means -5. There is a way to find each and a determinant of each matrix. We will discuss it, but here how we find 3 into 1 minus 4 into 2. This particular element is connected with this matrix and this is called its determinant. Okay, so we can say determinant of a square matrix is a number. It is either real or complex associated with it and is denoted by determinant A or this determinant A or delta. Delta word भी use करते हैं हम। डेल्टा और कहाँ यूज़ करते हैं बेटे हम? एरिया के लिए, राइट? तो डेल्टा यहाँ भी यूज़ करते हैं हम बहुत बार, यू शुड रिमेंबर इट। इसको बेटे बिल्कुल हम एज सच फंक्शन भी ले सकते हैं। कैन यू सी हियर, अगर हमने किसी फंक्शन में ये एलिमेंट डाला तो हमें ये रिज़ल्ट मिला। फंक्शन को हम कैसे ट्रीट करते हैं? जस्ट लाइक अ मशीन, कि हमें एक एलिमेंट कुछ और डाला, हमें कुछ और एलिमेंट मिला, राइट? तो वही हो रहा है, ये एलिमेंट अगर हमने उसमें फंक्शन कोई ऑपरेट किया इस पर, ये वाला फंक्शन ऑपरेट किया इस पर, तो हमें ये रिजल्ट मिला। वी कैन डेफिनेटली ट्रीट इट एज ए फंक्शन। वी कैन से दैट इट इज़ अ फंक्शन f from m to c. What is m? m is the set of all matrices and c is the set of complex number. You know very well real number set is itself contained in complex number set. Okay, so this is a function f from m to c given as f of a is x. Okay, a is the m which is the set of matrices and x is in c which is the set of complex number. Here what we can say? Here we can say f of this matrix A is -5, right? Okay, but this is just for your understanding. We are not going to use it very widely here. Okay, is it clear? Determinant is actually a number related with the square matrix. You should remember only with square matrix. Okay, with rectangular matrix there is no such number. Okay, let us move on. आपने डिटर्मिनेंट के लिए बेटे कुछ बातें ध्यान रखनी है जरूर, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके, राइट? आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, हाउ इट इज डिनोटेड, आपने देखा मैट्रिक्स ये थी, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था। ओके, इसके डिटर्मिनेंट को जब अगर बाय नेम यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसके दोनों तरफ बार लगा दिया, लेकिन अगर मैट्रिक्स को भी प्रॉपर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है तो हम दोनों तरफ बार लगाते हैं। ओके, you should not confuse with both symbols. You should remember this is an array but this is a number. Okay,
क्वेश्चंस करते हुए मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट दोनों साथ में पढ़ते हैं बच्चे, इतने कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे अभी टर्म्स एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है, उस पर डिटर्मिनेंट्स के साइन लगा देते हैं, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर मैट्रिक्स के साइन लगा देते हैं। तो यू शुड क्लियर कि कहाँ हमारा मैट्रिक्स है, कहाँ हमारा डिटर्मिनेंट है। ठीक है, दिस A itself is an array but this determinant A is a number. Okay, you should remember it. इसलिए आप ये ब्रैकेट्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे बेटे, आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस, बट कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, मैंने इसलिए ये मेंशन किया है। स्क्वायर ब्रैकेट आपने हमेशा मैट्रिसेस में लगाने हैं एंड दीज बार्स आर ऑलवेज विद डिटर्मिनेंट्स। ओके, एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है बेटे कि प्लीज़ इस डिटर्मिनेंट साइन को मॉडुलस से कंफ्यूज नहीं करना। डोंट रीड इट एज मॉडुलस ऑफ ए, this is not modulus of a. In fact, determinant can take both values positive or negative. Make it very much clear. This is not the sign of modulus, this is the sign of determinant, and determinant can take any of the value. Okay, don't read it as modulus of a. Okay, you should remember all these points. These are very small points जो skip हो जाते हैं हमसे कैजुअल काम करते हुए, मिस्टेक्स हो जाती हैं। You should remember all these points. Okay, डिटर्मिनेंट अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट बेटे कैलकुलेट करने के लिए वी विल गो वन बाय वन, उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड। तो हम 1 बाय 1, 2 बाय 2, 3 बाय 3 इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। इससे हायर ऑर्डर हमारे कोर्स में नहीं है। ओके, तो सिंपली 1 बाय 1 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या करना है बच्चे? अगर ये हमारी 1 बाय 1 ऑर्डर मैट्रिक्स है ए, तो इसका डिटर्मिनेंट सिंपली ए ही होगा। इसका डिटर्मिनेंट सिंपली ए ही होगा, वही एलिमेंट होगा। ठीक है, वी कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स सिंगलटन हैविंग सिंगलटन 4, तो डिटर्मिनेंट ए इज 4। इफ ए इज द मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट -3 ओनली, देन डिटर्मिनेंट ए इज -3। ओके, वी हैव जस्ट ऑब्जर्व पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले सकता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सिंपल 1 बाय 1 में तो सिर्फ वो एलिमेंट ही डिटर्मिनेंट होगा इटसेल्फ। ओके, यस, 2 बाय 2 भी हम एग्जाम्पल में कर चुके स्टार्टिंग। लेट अस सी इट प्रॉपरली। ये अगर मैट्रिक्स है 2 बाय 2 ए बी सी डी, तो हाउ वी फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट की नोटेशन हमेशा ध्यान रखिए बेटे, डी ई टी मैट्रिक्स नेम और विद इन बार्स मैट्रिक्स नेम। ठीक है, और जब मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट में लिखना है तब भी इसको डिटर्मिनेंट के लिए बार्स में चेंज कर देना। एंड हाउ वी आर कैलकुलेटिंग? ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, राइट? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, दोनों टर्मिनोलॉजी यूज होती है। इस मैट्रिक्स का कैलकुलेट करिए फास्ट, आप देख चुके ये तो बहुत। यस, आई होप यू हैव फाउंड इट। 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 2। ओके, क्लियर? 2 बाय 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए, सॉरी डिटर्मिनेंट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, क्लियर? चलिए लेट अस मूव ऑन टू 3 बाय 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। 3 बाय 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए क्या है बेटा? 3 बाय 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में मतलब 3 रोज हो गई, 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो हम उसका डिटर्मिनेंट किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग निकाल सकते हैं। दैट मीन्स देयर आर 6 वेज। ओके, और हम उसको निकालेंगे भी कैसे? 2 बाय 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स यूज़ करके। हम 3 बाय 3 डिटर्मिनेंट को 2 बाय 2 डिटर्मिनेंट्स में चेंज करके एक्सप्रेस करके निकालते हैं। तो वो
कैसे निकालते हैं वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। ये यहाँ सब यही लिखा है, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि 2 by 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में चेंज करके करते हैं। एंड देन देर आर 6 वेज, हम उसकी किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। आंसर विल बी द सेम, डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी सेम। ये नहीं होगा कि किसी के अलग के अलॉन्ग निकालेंगे तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं, लेट अस सी। ये हमारी जनरल मैट्रिक्स है, ठीक है। A11, A12, A13 याद है ना सबको। एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्या शो कर रहा है, ये 1 नंबर ऑफ रो और ये 1 नंबर ऑफ कॉलम, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। याद है सबको, ओके। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हमने निकालना है तो व्हाट वी विल डू, हम इस रो के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, ठीक है। इस फर्स्ट रो के अलॉन्ग क्या करेंगे हम, इस फर्स्ट रो के अलॉन्ग क्या होगा, ये इसके एलिमेंट्स यूज़ करेंगे और फिर 2 by 2 डिटर्मिनेंट्स यूज़ करेंगे और एक साइन यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं, लेट अस सी। ये फर्स्ट एलिमेंट लिखा हमने A111, ठीक है। देन हमने मल्टीप्लाई किया साइन से, साइन कैसे आना है, -1 पावर, -1 पावर ये जो सफिक्सेस थे इनका सम 1 + 1, ठीक है। ये फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर रहे हैं हम। फिर ये डिटर्मिनेंट कैसे आया, जस्ट से हमारा ये A11 एलिमेंट है, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो हम डिटर्मिनेंट के लिए जो मेन डिटर्मिनेंट है इसमें फर्स्ट रो हाइड कर देंगे एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे, ओके। व्हाट वी हैव गॉट, अ 2 by 2 डिटर्मिनेंट, यू कैन सी इजिली इट इज़ द सेम, A22, A23, A32, A33। जब मैं बोल रही हूँ टर्म्स तो मैं हमेशा रो वाइज बोलूँगी बेटा, ओके। A22, A23, A32, A33, ओके क्लियर। कैसे निकाला हमने, लेट अस सी वंस अगेन। हमने क्या किया, क्योंकि ये A11 एलिमेंट था तो हमने सबसे पहले फर्स्ट रो हाइड की, देन फर्स्ट कॉलम हाइड किया, ओके। जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है दैट इज 2 by 2 डिटर्मिनेंट, वी हैव यूज्ड इट, ओके क्लियर। अब देख रहे हैं पूरे में 3 टर्म्स हैं और हर टर्म में 3 फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर क्लियर कट आपको पता होने चाहिए। क्या कर रहे हैं आप, फर्स्ट एलिमेंट रो 1 के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं इसे हम अभी, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट -1 पावर जो ये फर्स्ट एलिमेंट में है सफिक्सेस उनका सम 1 + 1, देन यही सफिक्सेस के अलॉन्ग जो रो एंड कॉलम है उनको हाइड करके फर्स्ट रो हाइड की, फर्स्ट कॉलम हाइड किया, वी गेट दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को लिखा, ठीक है। 2 by 2 डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व हो गया, उसे आता है हमें निकालना, राइट। देन प्लस देन सेकेंड एलिमेंट A12, ओके सॉरी, -1 पावर अब क्या होगा, यस 1 + 2, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, 1 + 2। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब जब आप डिटर्मिनेंट में लेंगे, आप डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो हाइड करेंगे, सेकंड कॉलम हाइड करेंगे, जो रिमेनिंग आएगी आपकी डिटर्मिनेंट 2 by 2 वो ये है A21, A23, A31, A33, ओके क्लियर, राइट। हमने क्या किया, लेट अस सी वंस अगेन। A12 के लिए फर्स्ट रो हाइड की एंड सेकंड कॉलम, ओके क्लियर है ना। ये सफिक्सेस से हमने पढ़ना है, तो ये थर्ड फैक्टर आ गया इस टर्म का, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा टर्म है A13 प्लस A13 -1 पावर, यस वेरी मच क्लियर, 1 + 3, ओके। और अब जब हमने 2 by 2 डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालना है, फर्स्ट रो हाइड एंड थर्ड कॉलम हाइड। लेट अस सी, ये डिटर्मिनेंट में हमने फर्स्ट रो हाइड कर दी एंड
थर्ड कॉलम हाइड कर दिया, तो वी विल लेफ्ट विद दिस डिटर्मिनेंट, दिस इज A21, A22, A31, A32, राइट? ओके, क्लियर? हमने क्या किया, A13 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 1 शोज फर्स्ट रो, तो हमने फर्स्ट रो हाइड की, एंड 3 शोज कॉलम, तो हमने थर्ड कॉलम हाइड किया। वी विल लेफ्ट विद दिस डिटर्मिनेंट A21, A22, A31, A32। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ये हमने किसके लॉन्ग सॉल्व किया, R1 के लॉन्ग। बट ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा ना, जो मैथ्स पढ़ते हैं उन सबको पता चल रहा होगा ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। क्या करते हैं हम साइन सबसे पहले लिखते हैं, राइट? हम साइन सबसे पहले लिखते हैं। हमारे यहाँ साइन -1 पावर 1 + 1 हम ये ले आते हैं सबसे पहले, देन एलिमेंट, देन डिटर्मिनेंट। ओके, क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। कहीं भी डाउट है बेटे, पॉज करिए, रिवाइंड करिए, दोबारा देख लीजिए। ओके, आई होप मैंने इसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, अब इसको ही C1 के लॉन्ग सॉल्व करते हैं बेटा। C1 के लॉन्ग देखते हैं, कॉलम के लॉन्ग। जब हम कॉलम के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आएगी इसकी। अगेन इसको देख लेते हैं कैसे आई। ये आपका फर्स्ट कॉलम, ठीक है? तो इसके एलिमेंट आपने कैच करने हैं, A11, A21, A31। अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई होना है उसी ढंग से, -1 पावर 1 + 1, ठीक है, -1 पावर 2 + 1, ठीक है, -1 पावर 3 + 1। ओके, ये डिटर्मिनेंट भी लेने का वही तरीका है, बस इन्हीं सफिक्सेस के लॉन्ग। 1 1 मीन्स फर्स्ट रो हाइट, फर्स्ट कॉलम हाइट, राइट? ठीक है, ओके। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट, A22, A23, A32, A33, राइट? ओके, देन A21 के साथ जब करना आपने तो फर्स्ट कॉलम ही होना है, लेकिन रो सेकंड होगी। ठीक है, जब हम C1 के लॉन्ग कर रहे हैं तो कॉलम वही हाइड होना है, रो एक एक बार चेंज होती जा रही है। जैसे R1 के लॉन्ग कर रहे थे तो कॉलम चेंज होता जा रहा था, रो वही फिक्स थी। ठीक है, तो अब कॉलम यही रहेगा, रो चेंज होती जाएगी। अब सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, आप इससे पढ़ो या आप ऑर्डर से ध्यान रखो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, A12, A13, A32, A33, यही डिटर्मिनेंट है ना, राइट? अब A31 के साथ, A31 के साथ मतलब फर्स्ट कॉलम है लेकिन थर्ड रो हो गई, तो वी विल गेट दिस डिटर्मिनेंट A12, A13, A22, A23, राइट? गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट? बस इसको थोड़ा सिमेट्री में लिख देते हैं बच्चे, -1 की पावर स्टार्टिंग में, क्योंकि उससे सिर्फ साइन में फर्क पड़ रहा है। यू नो वेरी वेल, -1 की ऑड पावर नेगेटिव देती है एंड -1 की इवन पावर पॉजिटिव देती है, तो सिर्फ साइन में फ़र्क है, उसको हम हमेशा स्टार्टिंग लिखेंगे। ओके, यह हमने किया बेटे R1 C1 के लॉन्ग। आप डेफिनेटली इसको किसी भी रो, किसी भी कॉलम के लॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं, एंड बिल्कुल अपने आप करके देखिएगा। आई एम जस्ट शोइंग हियर, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑल, you just try yourself and check from here, you can verify your answer। ठीक है, किसी भी रो, किसी भी कॉलम के लॉन्ग सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं आप बिल्कुल, ये एक्सप्रेशन आपके होंगे। ठीक है, बट हाँ पर्टिकुलर एक एग्जांपल में बिल्कुल मैं आपको 2 के लॉन्ग दिखा रही हूँ, आंसर सेम है या नहीं है। ये मैट्रिक्स है हमारी, राइट? इसका डिटर्मिनेंट ये होगा। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं बेटा R1 के लॉन्ग, पहले R1 के लॉन्ग। ठीक है, ये जो हाइडिंग वगैरह की, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, दिस इज़ ऑल जस्ट मेंटल कैलकुलेशन। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में नो डाउट, स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझने के लिए वी विल गो स्लो, आपको समझाना है तो वी कैन डू दैट, बट अभी आपको आदत डालनी है, हमने इसको मेंटली हाइड करना है। ठीक है, हमने R1 के लॉन्ग करने मतलब एलिमेंट ये यूज़ होने,
तो अब इस एलिमेंट को जब यूज करेंगे तो इस एलिमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई होना है, यू जस्ट हाइड दिस रो, यू जस्ट हाइड दिस कॉलम इन माइंड, you will get this determinant. Okay, that means with 2 you are to multiply this determinant 6201, right? यही था, ठीक है। देन इसमें ये हमारा 1 2 एलिमेंट, इसमें -1 की पावर ऑड आ जाएगी तो नेगेटिव हो गया, राइट, नेगेटिव हो गया। देन 3 इटसेल्फ, अब क्या करना है, यही रो हाइड होनी है, R1 के लॉन्ग कर रहे हैं तो हमेशा रो 1 ही हाइड होनी है, कॉलम चेंज होना है 1 बाय 1, सेकंड कॉलम हाइड होना है, सेकंड कॉलम हाइड होगा तो 1 2 3 1 1 2 3 1, राइट, ये डिटर्मिनेंट आ गया। प्लस नेक्स्ट एलिमेंट 5, अब इसमें -1 पावर 1 + 3 था, इवन पावर तो प्लस आ गया, ठीक है 5। हाँ, एलिमेंट खुद नेगेटिव है कोई तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये साइन उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, फिर यू विल बी वेरी केयरफुल। 5 इंटू दिस रो हाइट, दिस कॉलम हाइट 1360, ठीक है, दिस इज द डिटर्मिनेंट। ओके, सिंपल। तो हमने जब कैलकुलेशन करनी है, और आप देखेंगे आगे क्वेश्चन में ये 1 मार्क की कैलकुलेशन है बेटा, उसके लिए वो हाइड करके लिखना, इवन ये डिटर्मिनेंट भी हम सीधा कैलकुलेट करके लिख देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ अभी सिर्फ, ठीक है, डिटर्मिनेंट भी हम सीधा कैलकुलेट करके लिख देते हैं मेंटली। वी कैन राइट इट एज 2 × 6 - 0 - 3 1 - 6 + 5 × 0 - 18। कैलकुलेट किया आपने ये डिटर्मिनेंट, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का 6 - 0 1 - 6, ठीक है, 0 - 18। ओके, इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट दिस। ओके, and this is your understanding, your level of getting the concept, आपने कौन से कितने स्टेप लिखने हैं, we basically want this determinant, ठीक है। जनरली this and this step बच्चे लिखते हैं, ये मेंटली कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ये R1 के लॉन्ग सॉल्व किया था, एक कॉलम के लॉन्ग देख लेते हैं बेटे, इसको क्या होता है, आंसर सेम आता है या नहीं। C2 के लॉन्ग सॉल्व करते हैं, ठीक है। C2 के लॉन्ग जब सॉल्व करेंगे तो ये A21 है, ठीक है, -1 पावर ऑड तो नेगेटिव आएगा सबसे पहले। देन 3, अब इस रो इस कॉलम को हाइड किया, 1 2 3 1, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस, इसके साथ नेगेटिव होगा तो इसके साथ प्लस होगा, ऑल्टरनेटिवली होते हैं जनरली, वरना आपके ध्यान रख लीजिए। 2 2 है, -1 पावर 2 + 2 दैट मीन्स -1 पावर इवन प्लस रहेगा, ठीक है। और दोबारा कह रही हूँ बेटे, एलिमेंट के साथ खुद नेगेटिव है तो वो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ नहीं है बाई चांस, यहाँ सभी मैंने पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है। ये 6 तो इसके लॉन्ग रो हाइट, इसके लॉन्ग कॉलम हाइट 2 5 3 1, दिस इज द 2 by 2 determinant, right? Minus, next is 0 0, this row height, this column height 2 5 1 2, okay, 2 5 1 2, okay. So after opening it we will get this 2 by 2, आपको आदत हो गई है बेटे, 1 - 6 2 - 15, इसको सॉल्व करने की कोई सेंस नहीं है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 0 ही आएगा, ठीक है। ओके, तो वी विल गेट दिस एंड दिस विल अल्टीमेटली गिव्स अस -63, और यही आया था बेटा। दैट मीन्स हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें, वी विल गेट द सेम वैल्यू। एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट along any row or column gives same value, okay. So that depends on your understanding, बट हाँ कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं, हम कोशिश करते हैं डिटर्मिनेंट को सबसे ज़्यादा उसके लॉन्ग निकालने की जहाँ पर मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन और कम हो जाए, ठीक है। लेट अस सी सम सच पॉइंट्स, जो भी हमने साइन भी यूज़ किए हैं, आई विश कि आप उसे ईज़िली याद रखो। देखो हमने क्या किया, हमने -1 पावर सम ऑफ सफिक्सेस लिया, दैट मीन्स -1 पावर i + j लिया, ठीक है। बट हमें पता है -1 पावर i + j +1 होगा अगर i + j इवन है, राइट।
-1 पावर i प्लस जे -1 होगा अगर i प्लस जे ऑड है, राइट, यही होगा, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं बेटा, उसको आप जो साइन है बार बार निकालिए मत, ये कर रहे थे ना हम साइन के लिए, ठीक है, ओके। आप इसको याद रखिए और वेरी सिंपल टू लर्न, प्लस से स्टार्ट होंगे, ऑल्टरनेटिवली साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मतलब यहाँ पर जो भी आपका वो डिटर्मिनेंट और एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आएगा उसको इस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस मीन्स मतलब कुछ मत चेंज करिए उसमें, माइनस मीन्स उसका साइन चेंज कर दीजिए, बस, ठीक है, ओके। ये आप इजली याद रख सकते हैं, दैट इज़ वेरी यूजफुल टू रिमेंबर, बार बार हमने ये पावर्स नहीं लिखनी, ठीक है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, हम जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हम उस रो या कॉलम के लॉन्ग करेंगे जहां पर मैक्सिमम जीरोस हैं, ओके, जहां मैक्सिमम जीरोस हैं हम उसके लॉन्ग सॉल्व करेंगे, ओके, क्लियर। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे सभी, ठीक है, यूज भी करेंगे, ओके। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट डिटेल इन टॉपिक जो आपके रोज और कॉलम्स के बेस है। मैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स बेटे वो ले रही हूँ जिनसे हमारी कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट की थोड़ी इजी हो जाती है। 1-1 मार्कर बहुत क्वेश्चंस बेटे इसी कंसेप्ट्स के बेस आते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सेपरेट लेना चाहती हूँ, आप अंडरस्टैंड करिए इन प्रॉपर्टीज़ को। जस्ट सी, इनके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। The determinant of the product of matrices equal to product of their respective determinants. ये दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फॉर टू स्क्वायर मैट्रिसेस A and B of same order, determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B, ओके। सिंपल प्रॉपर्टी, इसको वेरीफाई कर सकते हैं बेटे हम। दो मैट्रिसेस ले ली हमने, ये अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, क्विकली आपको रिवाइज करा देती हूँ। 3 × 2 6 प्लस 4 × 1 4, 6 + 4 10, 3 × 0 0 प्लस 4 × -1 -4, दैट मीन्स -4 क्योंकि पहला 0 हो गया। 1 5 2 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 प्लस 5 × 1, 2 + 5 7, राइट। 1 5 0 -1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 0 प्लस 5 × -1, दैट मीन्स -5, राइट। ए बी मैट्रिक्स ये आ गई। अब आप जब करेंगे कैलकुलेट तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज दिस -50 + 28, दैट इज -22, एंड डिटर्मिनेंट ए इज 11, डिटर्मिनेंट बी इज -2, तो इसका प्रोडक्ट भी -22 आया, राइट। दैट मीन्स वी कैन वेरीफाई डिटर्मिनेंट ए बी इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ओके। इन प्रॉपर्टीज़ के सच प्रूफ नहीं पूछे जाने, वेरिफिकेशन हमने एक बार कर ली, ओके। ये हमारा क्वेश्चंस में भी अप्लाई करके अभी दिखाऊंगी आपको क्वेश्चंस भी कैसे हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल रिजल्ट, फॉर टू मैट्रिसेस A and B, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ये आप याद रखेंगे पहली प्रॉपर्टी। देन वेरी इंपॉर्टेंट, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज डिटर्मिनेंट ए, ये आपने ध्यान रखनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम, वी कैन से इट एज वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम, ट्रांसपोज ऐसे ही करके निकालते हैं ना, हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो हम यही कह सकते हैं रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं है, राइट। फॉर ए मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ए, ओके। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं बेटा एक बार। वेरिफिकेशन प्लीज़ मैं 2/2 से ही कर रही हूँ। ये मैट्रिक्स ली हमने, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया 1 × 9 - 4 × 3, 9 - 12 दैट इज़ -3, ठीक है। अब इसका अगर ट्रांसपोज ले लूँ तो दैट विल बी रोज एंड कॉलम इंटरचेंज 1 4 3 9, राइट। तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा ट्रांसपोज का, दैट विल बी 1 × 9 - 3 × 4, दैट इज अगेन 9 - 12, दैट इज अगेन -3, दैट मीन्स दीज टू आर। So what we can conclude, determinant of transpose of a matrix is same as determinant of the matrix,
right? Determinant of A transpose is same as determinant A. Okay, clear? This is very important. This is also very important property to use in problems. Let us do some problems. Just see now. If this matrix, determinant of this matrix is 30, then find 2 times this determinant. If determinant this is 30, then find 2 times determinant this. Just observe it. आपको ये determinant दे रखे हैं आप clear cut. ठीक है, अब जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे आप बिल्कुल कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर पाओगे इनमें रिलेशन, तभी तो क्वेश्चंस देने का वरना पर्पस ही नहीं होगा, ये यूज होगा तभी होगा. जस्ट सी एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, दैट मीन्स यहाँ से रोज और कॉलम्स क्या है एक दूसरे से इंटरचेंज. दैट मीन्स ये क्या हो गए एक दूसरे के ट्रांसपोज. राइट, गॉट इट? तो बेटा इसका ही रिजल्ट का यूज़ हो रहा है जो भी हमने लास्ट किया. सिंपली कैसे हो रहा है, लेट अस सी. वी कैन क्लियरली सी दिस ट्रांसपोजेस दिस. ठीक है, ये आपकी मेंटल कैलकुलेशन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये. ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये आपकी मेंटल कैलकुलेशन है, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ सिर्फ. तो अगर ये ऐसा है तो हमें पता है ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज डिटर्मिनेंट ए इटसेल्फ. राइट, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इटसेल्फ. दैट मीन्स 2 टाइम्स 30, दैट विल बी 60. तो बेसिक आंसर इज दिस. ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग. ओके, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, सिंपल ना. आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए बस. ओके, let us see one more example. If determinant A is 10 and determinant of B transpose is 4, then find determinant AB. Find determinant AB. अभी ये जो हमने रिजल्ट किया determinant AB is, हमने क्या किया, determinant AB किसके इक्वल होता है, determinant A into determinant B के. And we know determinant of B transpose is determinant B. Right? Okay. बस इसको यूज़ करना है. डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट बी ट्रांसपोज दिया, दोनों रिजल्ट मतलब यहाँ यूज़ हो गए जो हमने अभी किए हैं बेटे. डिटर्मिनेंट ए इज़ 10, डिटर्मिनेंट बी ट्रांसपोज इज़ 4, वी गेट डिटर्मिनेंट ए बी इज़ 4. सिंपल ना, बेसिक रिजल्ट है. 1 मार्कर बार बार कहती हूँ बेटे, आपके बेसिकली कंसेप्चुअल नॉलेज चेकिंग है. आप जितना अच्छे से कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे उतना अप्लाई कर पाएंगे. कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 मार्कर आपके बुक से ही होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है. आपको जो भी कंसेप्ट्स दिए हुए हैं बस वो आपको अच्छे से समझने. ठीक है, चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल और ए ट्रायंगुलर अपर और लोअर. हमने बात की थी बेटे ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की भी, अपर भी और लोअर भी. ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स होता है. वेरी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी टू इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इजीली. आप बहुत इजीली किसी भी डायगोनल और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं. यू कैन सी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अदरवाइज प्रॉपर वे से इसका ये डिटर्मिनेंट इसका प्रोडक्ट होगा. कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से यूज़ होती हैं ये प्रॉपर्टीज़, इसलिए ये पता होनी चाहिए बेटे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए. 4 × -5 × 2 इज़ -40. ठीक है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, दिस इज़ जस्ट बाय आवर एक्सपीरियंस. ओके, तो यू शुड यूज़ इट वेरी वाइजली. ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर. ठीक है, इसका भी डिटर्मिनेंट 3 × 1 × 5 15 आएगा. ठीक है, यू कैन सी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं बेटे, जो आपको मेथड बताया आपको मैं क्विकली देखो बता ही देती हूँ. आप इसके अलॉन्ग सॉल्व करोगे जो हमने रूल का है, तो 3 × दिस डिटर्मिनेंट होगा, और ये दिस डिटर्मिनेंट क्या है 1 × 5, ये भी 0 हो गया. ठीक है, तो 3 × 1 × 5 सिंपल. ओके, सिर्फ हमने एक अलग से प्रॉपर्टी बना के लिख दिया है. ये प्रैक्टिकल जब एप्लीकेशंस कर रहे हो डिटर्मिनेंट निकालने के, उसी से आ रहे हैं. आप याद रखो, आप बार बार पूरी वो लंबा मेथड मत करो, इसलिए हमने फटाफट इसे बता दिया आपको, आप लिख सकते हो. ओके, अब ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर. राइट,
और इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही आएगा। 2 इसके लॉन्ग सॉल्व करोगे, 2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस डिटर्मिनेंट इज -2 इंटू 3। ठीक है, सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आप ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। ओके, यू शुड रिमेंबर इट। यस, ये प्रॉपर्टी वैसे बेसिकली बेटे आपकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का रिजल्ट है, बट क्योंकि कैलकुलेशन में आपके 1 मार्कर्स में बहुत यूज़ होती है इसलिए मैं इसको अभी लिखवा रही हूँ एक बार। फॉर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n एंड ए स्केलर k इंटू ए का डिटर्मिनेंट मतलब स्केलर डिटर्मिनेंट ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, दिस विल बी k पावर n, ये जो स्केलर है वो k पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट a हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू a दैट मीन्स स्केलर मल्टीपल ऑफ a इज स्केलर पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट a। ठीक है, दैट इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज प्रॉपर्टी इन 1 मार्कर क्वेश्चन स्पेशली। तो आई एम टेकिंग इट, जस्ट सी एन एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बेस। फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स एफ, ये कैसे डिराइव हुई वो हम प्रॉपर्टीज़ जब रोज कॉलम वाली प्रॉपर्टीज़ बात करेंगे प्रॉपर तब हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, ये वहीं का कंक्लूजन है। फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स ए फाइंड डिटर्मिनेंट 2a इफ डिटर्मिनेंट a इज 5। तो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, स्केलर यहाँ 2 है, इस प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या लिखेंगे, 2 पावर 3 into determinant a, that means 8 into determinant a is 5, 8 into 5 40. Simple. These kind of 1 marker questions comes on the basis of calculating a determinant. ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको सेपरेटली बता दी हैं। फॉर आपने ये सब प्रॉपर्टीज याद रखनी है। यस, एक चीज़ और है बेटा, डिटर्मिनेंट की इक्वालिटी एंड मैट्रिसेस की इक्वालिटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, उनके रिजल्ट्स बहुत गलत यूज़ करते हैं, उसको भी मैं एक बार साथ में लेना चाहती हूँ। जस्ट ऑब्जर्व, ये मैट्रिक्स हम इस मैट्रिक्स के इक्वल कह रहे हैं। ठीक है, 2 मैट्रिसेस को इक्वल कब कहते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तब ये इक्वल होंगी। ठीक है, दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड a इज़ 1, b इज़ 2, c is 3, t is 4, राइट। ठीक है, और वहीं 2 डिटर्मिनेंट्स कब इक्वल होते हैं, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर है, राइट। डिटर्मिनेंट अरेंजमेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट एरे नहीं है। जब अरेंजमेंट है तब हम 1 by 1 इक्वालिटी देखते हैं, बट जब ये अरेंजमेंट नहीं है, ये नंबर है, तो नंबर के एग्जैक्ट नंबर से इक्वालिटी देखेंगे बेटा। इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेंगे आप, AD माइनस BC शुड बी इक्वल टू 4 माइनस 6, तब आप बिल्कुल ये कॉरस्पॉन्डेंस नहीं लेंगे। कॉरस्पॉन्डेंस इक्वालिटी आप लेते हैं मैट्रिसेस में, डिटर्मिनेंट्स में आप एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करके फिर इक्वालिटी लेते हैं। जो इनकी डेफिनेशन है उसी को यूज़ कर रहे हैं हम। मैट्रिसेस इज एक्चुअली एन अरेंजमेंट एंड डिटर्मिनेंट इज जस्ट अ नंबर। तो उस नंबर को एग्जैक्टली फाइंड आउट करके आप इक्वल करेंगे, उसको मैट्रिसेस की तरह ट्रीट करके इक्वल नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बेस में एग्जाम्पल ले लेती हूँ 2 ताकि आप और अच्छे से इसको समझो। Find the value of A and B if this matrix is equal to this matrix. That means अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, that means A is equal to 2 and 1 is equal to minus B. A is equal to 2 and 1 is equal to minus B. That means A is 2 and B is minus 1. क्योंकि ये मैट्रिक्स थे तो हमने इनको अरेंजमेंट के तौर पर देखा, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखे इक्वल हो। ठीक है, अब अगर 2 डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं, अब ये 2 डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं बेटा तो एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना है, फिर इक्वालिटी की बात करनी है। यहाँ से क्या नंबर आएगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 4 दैट मीन्स 6 प्लस 4, और यहाँ से क्या नंबर आएगा, 2 इंटू p माइनस 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2p प्लस 2। ओके,
तो दिस विल बिकम 2p is 10 minus 2, that means 8, that means p is 8 by 2, that means 4. okay, clear this examples? अब आपके बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट रहना चाहिए कि मैट्रिसेस की इक्वालिटी मीन्स अरेंजमेंट की इक्वालिटी, वो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन से देखी जाएगी, बट डिटर्मिनेंट की इक्वालिटी मीन्स नंबर की इक्वालिटी, वो एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट की करके की जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए, अब ये बेसिक टर्म्स हम कर चुके हैं बेटे, आप बिल्कुल 4.1 आज ट्राई कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देती हूँ आपको, ताकि आपको और होल्ड हो जाए थोड़ा सा। यस, ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है बिकॉज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आर इन्वॉल्व। ठीक है, एक्सप्रेशंस आर इन्वॉल्व। तो एक बार इसको निकाल लेते हैं हम, है 2/2 का, एंड यू नो वेरी वेल कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, देखो कई बच्चे इसको बिल्कुल लंबा लंबा कैलकुलेट करते रहते हैं। 3 × 2 मतलब 6 एलिमेंट, ये 2 × 2 मतलब 4 एलिमेंट, पहले 6 एलिमेंट 4 एलिमेंट, फिर उनको कंबाइन करो। अदरवाइज देखो कितना ईजी दिख रहा है यहाँ से, x + 1 यू कैन टेक कॉमन एंड सो सिंपल एक्सप्रेशन विल इट बी, x² - x + 1 यहाँ से, और माइनस है, माइनस टाइम्स x - 1 दैट मीन्स -x + 1। ओके, तो इसको आप ऐड कर देंगे तो वी विल गेट x + 1 x² - 2x + 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नो डाउट, इफ एग्जैक्टली पॉलिनोमियल में पूछा है तो यू कैन ओपन इट, यू कैन गिव दिस आंसर। ओके, अदरवाइज यू कैन राइट इट टिल हियर, देयर इज नो इशू। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। यस, इफ A is this matrix then show that determinant of 2A is 4 times determinant A। अब ये आपने शो करना है, अब ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी, अब आपने शो करना है, इन दोनों को अलग अलग से निकालना है। ठीक है, तो हम A मैट्रिक्स दी हुई है, हम पहले 2A मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। 2A मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 4 8, 2 × 2 4, राइट। Scalar multiple of a matrix means multiplying each element of that matrix with that scalar। ठीक है, रिकॉल कर लीजिए ये। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें हम, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 × 4 8, -8 × 4 32, 8 - 32 इज -24, राइट। ओके, और अब 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट A निकाल दें बेटा। डिटर्मिनेंट A इज 1 × 2 - 4 × 2, that means 2 - 8, that means 4 × -6, that means -24। So we can see these two are equal, that means we have verified determinant of 2A is 4 times determinant A। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे करते हैं बेटे। ओके, यस, एवेल्यूएशन एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। एवेल्यूएशन में यहाँ देखो, सिर्फ जो मैं रिकॉल कराना चाहती हूँ, आप इस डिटर्मिनेंट को गौर से देखो बेटे, तो किस रो या किस कॉलम के लॉन्ग मैक्सिमम 0 है, गौर से देखिए। यस, R2 के लॉन्ग, राइट। तो हम इसको R2 के लॉन्ग सॉल्व करेंगे, हमारे पे कोई कंडीशन नहीं हमने किसके लॉन्ग सॉल्व करना है, जिससे हमें कन्वीनियंट होगा हम उससे सॉल्व करेंगे, और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है उस रो उस कॉलम के लॉन्ग जहाँ पर सबसे ज़्यादा 0 हो। तो हम इसे R2 के लॉन्ग सॉल्व कर लेते हैं, एंड यू कैन वेरी ईजिली ऑब्जर्व, यहाँ -0 +0, आपको साइन ध्यान है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, -0 + 0 ये आप नहीं भी लिखते चलता, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा सिर्फ, क्योंकि और डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये खुद 0 आ गए। ठीक है, नो नीड टू गिव द लेंथ इन द कैलकुलेशन। ओके, फिर -1, राइट, ये +1 हो जाएगा। अब इसके लॉन्ग आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट चाहिए, ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, 3 - 1 3 - 5, तो दिस इज द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो वी विल गेट दिस डिटर्मिनेंट एज -5 + 3 दैट मीन्स -15 + 3 दैट मीन्स -12। ओके, क्लियर। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया आपकी इस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने जिसके लॉन्ग सबसे ज़्यादा 0 हैं उसके लॉन्ग सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ हम जिस मर्जी के लॉन्ग सॉल्व करें। ठीक है, लेट अस सॉल्व इट अलोंग R1 इटसेल्फ। जो हमारी जनरल हैबिट रहती है वो R1 के लॉन्ग ही रहती है, अनलेस अनटिल कोई और कंडीशन नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू ये कॉलम हाइट, ये रो हाइट, 1 - 2 3 1, ठीक है। दिस डिटर्मिनेंट पहला प्लस था, नेक्स्ट आना है माइनस, माइनस ऑफ -4 + 4 हो जाएगा। ये आपको अगेन समझाने के लिए लिख रही हूँ बेटे, दैट कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन योर माइंड ओनली। आप कैसे कैच करते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ये डिटर्मिनेंट भी बोल रही हूँ, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है सिर्फ ये, ठीक है। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, 1 - 2 2 1, दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट एलिमेंट +5, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये साइन आपको कहे थे 5। अब ये कॉलम हाइट, ये रो हाइट, व्हाट विल वी गेट, 1 1 2 3, दिस डिटर्मिनेंट, ओके। तो इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लीजिए, 1 × 1 - 3 × -2, 1 × 1 - 2 × -2, 1 × 3 - 2 × 1, ठीक है। इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट दिस आंसर एज 46। ओके, क्लियर? यस, ये फर्दर कुछ और क्वेश्चंस हैं बेटे, इनमें से भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इक्वालिटी वाले कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। क्या बताया है, डिटर्मिनेंट की इक्वालिटी कैसे यूज करनी है बेटे, एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करके, राइट, एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करके। अब दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस, दैट मीन्स नंबर फाइंड आउट करेंगे, 2 - 20 इक्वल टू 2x² - 24, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना है, 2 - 20 इक्वल टू 2x² - 24। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x² इज -18 + 24, दैट मीन्स 6, दैट मीन्स 2x² इज 6, दैट मीन्स x² इज 3, दैट मीन्स x विल बी ±√3, ओके। ये बिल्कुल क्लियर रखा करिए बेटे, जब x² दे रखा है तो x दोनों साइन आएंगे प्लस माइनस, ठीक है। जब स्क्वायर रूट दे रखा है तब एग्जैक्ट वो नंबर आएगा। डोंट कंफ्यूज विद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका एक और पार्ट जो था वो भी देख लेते हैं बेटा। अगेन डिटर्मिनेंट्स की इक्वालिटी है, एग्जैक्ट नंबर्स, 2 × 5 - 4 × 3 10 - 12 इक्वल टू x × 5 - 2x × 3 5x - 6। अब यहाँ लीनियर आ रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो दिस विल बी -x इक्वल टू -2, दैट मीन्स x इक्वल टू 2, ओके। दिस इज द आंसर, ओके। आई होप आप एक्सरसाइज 4.1 फिनिश कर सकते हैं, आप तो कंप्लीट करेंगे आप बेटे। आप बिल्कुल इन मीडियम के थ्रू मेरे से कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ओके। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।